ناظرین، موٹاپا ایک ایسی مرض ہے کہ جو تمام امراض کی ایک جڑ جس کو کہا جاتا ہے، اور موٹاپے کے باعث لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور گزشتہ روز پورے پاکستان کی طرح سر گنگا رام اسپتال میں بھی ایک موٹاپے کا عالمی دن منایا گیا، اور اس دن منانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس دی جائے. تو اس حوالے سے آج بات کریں گے پروفیسر خالد جوید خان صاحب، جو معروف جنرل سرجن ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ موٹاپا ایک بڑی وجہ بتایا جاتا ہے کہ تمام امراض کا، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، یا دل کے عارضہ میں اگر کوئی مبتلا ہو، تو موٹاپے کو آپ کیا، اس کی ڈیفینیشن آپ کیا دیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں آج کے دن کے حوالے سے ایک اویئرنیس میسج دینے کا موقع فراہم کیا. پہلی چیز یہ ہے کہ موٹاپا ہے کیا. ہر کسی کے دماغ میں آتا ہے، ایک ہے کہ ایک سمپل کیلکولیشن سسٹم ہے پوری دنیا کے لیے جس کو ہم بی ایم آئی کہتے ہیں، باڈی میس انڈیکس. وہ ہر کوئی اپنا خود یہ فون پہ جا کے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. بی ایم آئی کیلکولیٹرز اویلیبل ہیں، آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اٹس ویٹ بائی ہائٹ ان میٹر اسکوائر. سمپل سا فارمولا ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے. اس میں جو فگر ویلیو آپ کے پاس آتی ہے، اگر وہ 30 کو کراس کر رہی ہے تو آپ موٹاپے کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں. اگر وہ بی ایم آئی آپ کا 30 کی فگر سے اوپر ہے تو آپ موٹاپے کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. پھر آپ کو اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم اوبیس. 27 سے 30 کے درمیان جو ہیں وہ اوور ویٹ ہے، اور 27 کے نیچے جو کام ہے وہ پھر نارمل 27، اس کے پیچھے اگر جانا چاہیں تو پھر نیچے آتے آتے آپ انڈر ویٹ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن سمپل فارمولا جو پوری دنیا میں ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا بی ایم آئی کتنا ہے، وہ آپ کا اگر 30 کراس کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ موٹاپے کا شکار ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہا جاتا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے شوگر ہو سکتی ہے، موٹاپے کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تو کون سی ایسی وجوہات ہے کہ لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اس کو موٹاپے میں کا شکار ہونے کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں آپ کا بیڈ ایٹنگ ہیبٹس اور بیڈ اور سیڈنٹری لائف سٹائلز، یہ بہت بڑے دشمن ہیں انسانیت کے اس وقت. آپ کو اپنے کھانے پینے کے بارے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. ہمارا جو کلچر ہے اس میں کھانے پینے کا عمل دخل اتنا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم نے کھانا ہی نہیں ہے تو پھر ہم زندہ کیوں رہیں. بالکل، یہ ہمارا کلچر ہے. اور اسپیشلی پنجاب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں یہ جو صبح دوپہر شام ناشتے کی سوچ، پھر دوپہر کے کھانے کی سوچ، پھر رات کے کھانے کی سوچ، اس چیز کی وجہ سے بہت بڑا فیکٹر ہے. سب سے اس وقت جو الارمنگ سچویشن پوری دنیا میں بن رہی ہے، اگر ہم اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو بچوں میں موٹاپا بہت بڑھ رہا ہے. اب اس کے ذمہ دار وہ بچے نہیں ہیں، ہم خود ہیں. ہم بچوں کو موبائل پکڑا کے کھانا ڈال دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کتنا کھا گئے ہیں. وہ اپنا پروگرام لمبا کرنے کے لیے اور سے اور کھانے کو مانگتے رہتے ہیں اور مائیں دیتی رہتی ہیں. اسی طرح سے یہ جو جنک فوڈ کی آپشن آ گئی آپ کے پاس کہ آپ کو بھوک لگی، آپ نے کال کیا، آپ کو کھانا مل گیا، تو یہ بچپن سے اب موٹاپے کی جو ٹینڈنسی آ رہی ہے، جب وہ ایک دفعہ آپ کے فیٹ سیلز بن جاتے ہیں پھر وہ جاتے نہیں کہیں. تیسری چیز جو سب سے خطرناک ہے کہ ہم لوگوں کو ایکسرسائز کرنے کی عادت نہیں ہے. ہم کوئی ورک آؤٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، ہم روزانہ واک بھی کرتے ہیں، لیکن جو موٹاپا ایک دفعہ ہو جاتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا. یہ لوگوں کی ایک رائے ہے. میرا اپنا جو ایکسپیرینس بھی ہے، میں خود ایک پروفیشنل سپورٹس مین بھی رہا ہوں، تو کافی حد تک ایک کانسیپٹ ہے ہمارے لوگوں کا، وہ کھانا نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ زیادہ کھا کے زیادہ ایکسرسائز کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کھانا نہیں کم کرنا. مثلا آپ کو میٹھا کھانے کو مل گیا ہے تو آپ نے میٹھا زیادہ اس لیے کھا لینا کہ چلو یار کل میں 15 منٹ اور واک کر لوں گا، یا میں 2 یونٹ انسولین اور لا لوں گا. یہ نہیں کرنا کہ بھی میں چھوڑ دوں. یہ کانسیپٹ لانا پڑے گا. میرا میسج ٹو ایوری بڈی از کہ فوڈ از پوائزن. یہ خطرناک ہے آپ کے لیے. یہ آپ کو obesity is a gateway. When it opens, it invites so many diseases. اس میں ڈائبٹیز پاکستان میں اس وقت ہر چوتھا بندہ
وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے. دنیا میں ہم 6 نمبر پہ آ گئے ہیں ڈائبٹیز میں پوری دنیا میں, لیکن ہم پھر بھی باز نہیں آ رہے. اور شوگر اور موٹاپے کا کیا تعلق ہے؟ موٹاپا جب آتا ہے تو اس کے ساتھ عموماً جو وجوہات ریلیٹڈ ہیں موٹاپا آنے کی, وہی وجوہات شوگر کی بھی بنتی ہیں. ہمارا جینیٹک میک اپ کچھ اس طرح کا ہے ایشین پاپولیشنز کا کہ اس میں ڈائبٹیز کا انسیڈنس بہت ہے. ایشینز جو چاہے پاکستان سے باہر بھی جا کے رہ رہے ہیں نا, وہ نسلوں سے امریکہ میں بھی رہ رہے ہیں یا انگلینڈ میں رہ رہے ہیں, ان میں بھی ڈائبٹیز کا انسیڈنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا لوکل پیپل. یہ ہمارا جینیٹک میک اپ ہے. پھر جینیٹک میک اپ کو ہم بائی ڈوئنگ کزن میرجز اس کو کہیں ٹھیک نہیں ہونے دیتے, اس کو اور خراب کرتے جاتے ہیں. تو یہ جو موٹاپے کے ساتھ جو فیکٹرز پلے کرتے ہیں وہی فیکٹر رول پلے کرتے ہیں ڈائبٹیز کا, اور پھر وہی فیکٹر مل کے دونوں وہ ہارٹ کو ہٹ کرتے ہیں. وہ بلڈ پریشر, پھر کارڈیک پرابلم, پھر جوڑوں کے درد, یہ سارا کچھ مل کے ایک پیکج بن جاتا ہے جو کہ مریض کو بستر پہ لٹا دیتا ہے اور وہ بیچارہ ہلنے کے قابل نہیں رہتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ کھانا کم کریں, واک کریں, یہ وہ لوگ ہیں جو نارمل لوگ ہیں, موٹاپا کم کرتے ہیں. بہت ایسے لوگ میں بہت زیادہ جن کا ویٹ بڑھ جاتا ہے, اور یہاں پر آپ نے سرجریز کی ہیں اور آپریشن کے ذریعے ان کا وزن کم کیا ہے. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ سر گنگا رام اسپتال میں اب تک آپ نے کتنے کامیاب آپریشن کیے, اور کیا یہ لوگوں کے لیے مفت آپریشن یہاں پر کی, چونکہ یہ بہت مہنگا علاج ہے. میں نے مختلف جو لاہور میں سرجنز ہیں تو اس کی تو فیس بہت زیادہ ہے, تو یہاں پر آپ نے اب تک کتنے لوگوں کا یہ سرجری کے ذریعے ان کا وزن کم کیا, اور کیا یہ مفت ہے یہاں پر آپ کے وارڈ میں؟ سب سے پہلے یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, کیونکہ اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے پاس یہ جو فیسلٹی ہے اس وقت, اس میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دی ایڈمنسٹریشن, our وائس چانسلر اینڈ the گورنمنٹ آف پنجاب کہ ہمیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ابھی تک. کیونکہ موٹاپے کی بیماری یہ تو نہیں دیکھتی کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے, وہ تو جس میں آ گیا وہ آ گیا. تو پھر اس کا علاج کرنے کے لیے اگر ریسورسز صرف امیروں کے پاس رہیں گے تو غریب آدمی کا تو کوئی جگہ ہی نہیں رہی. تو یہی سوچ کے ہم نے پھر اس کو یہاں شروع کیا, جس پہ میری یہاں کی ایڈمنسٹریشن وغیرہ نے سب نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا, اور ہم کر رہے ہیں اس کو. ابھی تک اوور 60 پیشنٹس ہم یہاں پہ کر چکے ہیں, اور الحمدللہ دے آل ہیو شون ویری پرومسنگ ریزلٹس. ان میں سے کچھ آپ کے سامنے بھی بیٹھی ہیں, تو ان سے بھی آپ بات کر کے پوچھیے گا کہ وہ خود بتائیں گے کہ ان کے کوئی پیسے بھی نہیں لگے, اور اس کے بعد جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے. تو اگر ہمارے ریسورسز رہے, گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی رہے, تو ہم تو چاہیں گے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی آنا چاہتے ہیں, اگر ان کو ضرورت ہے, میں پہلے بھی کہوں گا کہ یہ فیشن نہیں ہے, یہ فیشن نہیں ہے, یہ آپریشن ہے, اور اس میں پیشنٹ کا تعاون سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے آپریشن سے وزن کم نہیں ہوتا, آپریشن کے بعد جو ہم احتیاط بتاتے ہیں وزن کم کرنے میں, اس کا میجر رول ہے. اگر آپریشن کرا کے بھی آپ بدتمیزی اور بد پرہیزی کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ فرق بھی نہیں پڑے گا, پھر فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک کمٹمنٹ ہے جو کہ سرجن اور پیشنٹ کے درمیان میں ہے, اور جس میں پیشنٹ نے پھر آپ کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ سرجری ہے کیا, کس طرح آپ اس کو کرتے ہیں؟ اس میں سرجریز کے نا مختلف طریقے ہیں. وزن کم کرنے کی بھی اب بہت ساری آپشنز ہیں آپ کے پاس. کئی لوگ اب شوگر کی ایسی دوائیاں آ گئی جن سے آپ کا وزن کافی کم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کئی لوگوں میں سٹمک کو کاٹ کے چھوٹا کرنا. بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اپنا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اگر اس پیٹ کی کیپیسٹی کو کم کر دیا جائے تو آپ کھا نہیں سکیں گے, زیادہ کھا نہیں سکیں گے. جب آپ زیادہ کھا نہیں سکیں گے تو obviously پھر آپ کے وزن میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. تو اس میں یہ سلیو گیسٹریکٹمی سے لے کے گیسٹرک بائی پاس تک دیر آر آپشنس, جو ہم پیشنٹ کے حساب سے ڈیسائیڈ کر کے تو اس کے لیے پروسیجر سلیکٹ کرتے ہیں. تو سر اس میں کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب کسی پیشنٹ کا معدہ شارٹ کر دیں گے, چھوٹا کر دیں گے, تو اس کو انرجی اور طاقت اس کی جو باڈی کو وہ کم ہو جائے گی, اور پھر وہ جو ہے وہ شاید اس کا کوئی ریئیکشن یا اس طرح کی بات؟ اس سارے کانسیپٹ میں جو سرجری کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا وزن ہو جاتا ہے 180 کے جی یا 200 کے جی, اب آپ نے وہ وزن کم کرنا ہے. وہ وزن کوئی چیزیں جسم سے ہوا میں تو نہیں اڑ جانی. وہ کانسیپٹ بڑا سمپل ہے کہ
جب ہم آپ کی فوڈ کو ریسٹرکٹ کر دیں گے آپ اپنی باڈی کے سٹور ہاؤس کو کھانا شروع کر دیں گے. یہ جس ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اناج اپنے سٹور میں رکھ لیتے ہیں, جب ضرورت پڑی نکالا اور کھا لیا. یہ جو موٹاپا ہے یہ وہ سٹور ہے جو ہم ایکسٹرا کھا کے اندر ڈالتے رہتے ہیں, وہ باڈی سٹور کرتی رہتی ہے. جب ہم آپ کا کھانا بند کریں گے پھر آپ اپنی باڈی کا وہ سٹور کھانا شروع کریں گے, آپ اپنے آپ کو خود کھانا شروع کر دیں گے. انٹرنلی باڈی اس کو سٹور کو یوز کرنا شروع کر دے گی. جیسے جیسے وہ سٹور یوز ہوتا جائے گا آپ کا وزن کم ہوتا جائے گا. پھر جب ایک سٹیج آتی ہے جب آپ کو اپنی جیسے یہ پیشنٹ سے اگر آپ بات کریں گے یہ بتائیں گے کہ آپ کو موومنٹ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے, آپ ایکسرسائز کرنا چاہو کر سکتے ہو, آپ واک کرنا چاہو کر سکتے ہو. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ 180 kg کا بندہ اٹھ کے تو واک دوڑ لگانا شروع کر دے. وہ تو پہلے سلولی اپنے وزن کم کرے گا صرف خوراک کی کمی کی وجہ سے. پھر جب وہ تھوڑا اس قابل ہو جائے گا کہ اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کرے گا تو پھر خوراک اور ایکسرسائز دونوں مل کے ایک اچھا رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتا دیں, لوگوں میں خوف ہوتا ہے جب کوئی سرجری ہوتی ہے تو لوگ ڈرتے ہیں, کوئی بھی سرجری ایک خوف ہوتا ہے, تو اس کے کتنی کامیابی یہ سرجری ہے؟ کوئی اس ایسا بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خاصا کوئی پیچیدگی ہو جائے اس سرجری میں اور پیشنٹ اس کو دنیا کی فیس کرنا پڑے؟ دنیا کی کوئی سرجری ایسی نہیں ہے جس میں کہ کوئی یہ کہے کہ اس کی کمپلیکیشن نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی ایسی سرجری, ہر سرجری کی کمپلیکیشن ہوتی ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا انسیڈنس کتنا ہے, ایک چیز. دوسرا یہ کہ ایک پیشنٹ جو 180 kg کا یا 200 kg کا ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا تو وہ کمپلیکیشنز ہیں اس موٹاپے کی کمپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں سکتا, جس کی وجہ سے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہوتا ہے, وہ جوائنٹ پرابلمز آ جاتی ہیں, کارڈک ایشوز آ جاتے ہیں. ایسے پیشنٹ پہ جب ہم یہ والا آپریشن کرتے ہیں تو ان کا وزن جب کم ہونا شروع ہوتا ہے, ہم نے وے کرنا ہوتا ہے کہ مریض کا نقصان زیادہ ہے کہ فائدہ کس میں ہے. جب یہ بہت موٹے لوگوں کو ایک دفعہ ہم یہ چانس دیتے ہیں, اس میں بالکل سرجریز انوالو, میں نے اس لیے کہا کہ یہ کوئی فیشن نہیں ہے, یہ سمارٹ ہونے کے لیے آپریشن نہیں ہے, یہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو بڑھانے کے لیے ایز اے میڈیسن اس کو استعمال کرنا چاہیے, اور نارمل لائف میں ان کو لانے کے لیے پیشنٹ کو بالکل اس کو زندگی میں واپس زندگی میں لانے کے لیے, ورنہ تو وہ کسی کام کا نہیں ہے, نہ وہ ہل سکتا ہے نہ وہ چل سکتا ہے. بالکل. تو اس میں یہ ہیلپ جو ہم کر سکتے ہیں ان پیشنٹس کی جن کا کہ وزن بہت زیادہ ہے. اچھا پھر اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے, ایک ایسپیکٹ ہے اس کا صرف وزن, دوسرا ایسپیکٹ ہے بیماری. کئی لوگوں میں جس طرح سے آپ شوگر کا علاج کر کر کے تھک جاتے ہیں اور شوگر کنٹرول ہی نہیں ہو رہی, وزن بھی آپ کا بہت زیادہ نہیں لیکن شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, تو اس سرجری سے بیریاٹرک سرجری سے آپ کی شوگر کو آلموسٹ کیور ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس وہ پیشنٹس بھی ہیں جنہوں کو بلڈ پریشر کی شکایت تھی اور وہ جب آپریٹ کرا لیا انہوں نے تو ان کی بلڈ پریشر کی دوائی کی ضرورت ہی نہیں رہی, ان کو گلوکوز اس کا ڈائبٹیز کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں, لیکن سلیکٹیو کیسز, اچھے موٹیویٹڈ پیشنٹس جو بعد میں آپ سے کوآپریٹ کریں ان کو فائدہ ہوگا. شوقیہ آپریشن نہ کرنا چاہیے نہ کروانا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ناظرین یہاں پر بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پروفیسر خالد جوید خان صاحب کی ایک ٹیم ہے جو یہاں پر ظاہر ایک ٹیم ورک ہے, اور اس وارڈ میں سر گنگا رام اسپتال میں موٹاپا کم کرنے کے لیے جو سرجری کا کام شروع کیا گیا, ایک اچھا یہاں پر ڈیسیجن لیا گیا ہے. تو باقی ٹیم سے ہی بات کرتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین سر گنگا رام اسپتال میں جو موٹاپا جو ہے اس کو کیسے کم کیا جاتا ہے اور سرجری کے ذریعے کم کیا جاتا ہے, باقاعدہ طور پر یہاں پر کام شروع کر دیا گیا, اور کل اس حوالے سے ایک موٹاپے کا عالمی دن جو ہوتا ہے پوری دنیا میں منایا گیا اور سر گنگا رام اسپتال میں بھی منایا گیا, تاکہ جو ہے وہ اویئرنیس لوگوں کو ملے اور اویئرنیس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کریں. تو میرے ساتھ جو دیگر ٹیم ہے, اس سے پہلے پروفیسر صاحب سے بھی انٹرویو کر چکے ہیں, اور اس کی جو دیگر ٹیم میں ڈاکٹر وشال صاحب ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہے, اس کے ساتھ ڈاکٹر داؤد ارشد اور یہاں پر ڈاکٹر سجیل احمد بھی میرے ساتھ موجود ہے. یہ ٹیم پوری ہے ان کی, یہاں پر ان سے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر وشال سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ موٹاپے کی پاکستان میں کتنے مریض ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو اس کی شرح کیا ہے اس وقت پاکستان میں؟ السلام علیکم. اچھا اگر تو ہم موٹاپے کی بات کریں, جیسے ہم نے بتایا کہ ایک تو ہوتا ہے موٹاپا جو ایک بیماری کی صورت میں بن جاتا ہے. اگر ہم صرف اس کی بات کریں تو پوری دنیا میں ابھی تقریباً 60%
60% लोगों को है ये मसला, और ये मज़ीद बढ़ता जा रहा है. अगर हम हर 5-5 साल का देखें तो हर 5 साल ये बढ़ता जाता है. अगर हम पाकिस्तान का देखें, और यकीनन हम सब सोचते हैं कि मुल्क जो जिनमें थोड़ी बहुत गुर्बत ज़्यादा है उधर मोटापे का शिकार लोग नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है. क्योंकि उनको खाना कम मिलेगा. क्यों शायद खाना कम मिले, शायद अच्छा खाना कम मिल जाए, ठीक है. और ये भी एक चीज़ है कि अच्छा खाने के बजाय कि खाना जो तेल तला हुआ खाना, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना मिल रहा होता है, जो जिस तरह का खाना जिसकी क्वालिटी जो होती है वो इतनी ख़राब होती है, वो भी मोटापा मज़ीद बढ़ाती है. और ये देखा गया है काफ़ी उन मुल्कों में जिनमें गुर्बत थोड़ी ज़्यादा है, और पाकिस्तान में भी 40% तकरीबन लोग मोटापे के शिकार हैं. तो ये कुछ कम नहीं है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है अगर हम देखें. और इसलिए हमने इलाज भी अब शुरू करना किया है. इसकी वजह से इतनी जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको मद्देनज़र रखें कि इसका इलाज ज़रूरी हो चुका है. डॉक्टर साहब, आइंदा अगले महीने में शायद रमज़ान का मुक़द्दस माह भी शुरू होने वाला, तो इस महीने में लोग जो है वो पकौड़े, समोसे और इसकी तली हुई चीज़ें बहुत खाते हैं. तो इसके ऊपर अभी से अगर आप लोगों को कोई तजवीज़ दें. नहीं, वो तो बिल्कुल ना खाए. मतलब आप पूरा दिन रोज़ा रखें, उसके बाद आप 12 समोसे खा ले तो आपके रोज़ा के आपने जितने भी थोड़ा बहुत वजन कम किया उसके ऊपर वो तो क्या खत्म. और मेरे नाज़रीन को ये भी बताएं कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है रमज़ान में वजन कम करने के. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. और जो आज के लिए एक वजन कम करने का तरीका निकला हुआ है जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, वो पूरी दुनिया में चल रहा है और हमारे तो इस्लाम में है. मतलब हमारे मजहब का एक हिस्सा है कि आप 12 घंटे ना खाएं और 12 घंटे खाएं. और हमारे कितने सालों से अब पूरी दुनिया में ये लोग इस्तेमाल करें इंटरमिटेंट फास्टिंग, 12 घंटे खाएं 12 घंटे ना खाएं वजन कम करने के लिए. पर उसमें भी यही शराइत है कि जब आप खाएं तो जब 12 घंटे आप खा रहे अच्छा खाना खाएं, सब्जियां, फल, उबले हुए खाने, और मिकदार भी कम रखें. ये नहीं कि आप खाएं तो बस भरपूर खाएं, मिकदार कम रखें और आपका वजन आराम से 5 से 10 केजी एक माह में कम हो सकता है. नाज़रीन, ये एक बड़ी जो है वो बात है जो डॉक्टर साहब ने बताई है कि आगे जो रमज़ान आ रहा है उसमें अगर हम इनकी जो एक तजवीज़ है उस पर अमल दरामद करें तो जो लोग कहते हैं कि वज़न कम नहीं हो सकता, उनके लिए एक बड़ी बात यह है कि वज़न कम हो सकता है. आप एक महीने में बड़ा वज़न कम कर सकते हैं. मेरे साथ दूसरे यहाँ पर एक टीम के जो डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर दाऊद अरशद साहब हैं. डॉक्टर साहब, मोटापा हो गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा खा लिया, और चूँकि कहा जाता है ना कि जो खाने के शौकीन लोग, खासतौर पर लाहौरियों की बात करूंगा, ये तो बहुत ही खाने के शौकीन है. सुबह के टाइम नाश्ता भी बाहर करते हैं और रात को जो है वो होटल से खाना खाते हैं. तो ट्रीटमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पर सर्जरी तो शुरू की है, इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह आप मोटापे के शिकार लोगों को इलाज मुआवजा फराहम करेंगे? देखें, मोटापा जो है ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर काफ़ी कैटेगरीज हैं, इसके दर्जात हैं. कोई कम मोटा है, कोई ज़्यादा मोटा है. तो अब आपका वज़न कितना ज़्यादा है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वज़न कैसे कम किया जाएगा. सबसे अच्छा और सबसे कुदरती जो एक तरीका है वो तो ये है कि आप अपनी खुराक बेहतर करें और वर्जिश करें. ये कुदरती तरीका है, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज़, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, और ये सबसे हेल्दी एक कंसीडर किया जाता है. तो जब किसी का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है अपने आइडियल वज़न से, तो उससे वो वर्जिश करे और अपनी खुराक बेहतर करे तो उसका वज़न कम होगा. लेकिन इसमें भी ये है कि आप कितना अपना वजन खुराक से और वर्जिश करने से कम कर सकते हैं. तो वो ये है कि अगर आपका वजन फॉर एग्जांपल के मिसाल के तौर पर 100 किलो है, तो आप उसमें से 8 से 10 किलो जो वजन है वो सिर्फ आप वर्जिश से और खुराक को अपनी कंट्रोल करने से कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं. और इसमें ये है कि ये बाद में वजन फिर बढ़ सकता है जब आप ये वर्जिश छोड़ देंगे और खाना पीना दोबारा अपनी उसी आदतों पे आ जाएंगे तो ये वजन फिर बढ़ सकता है. इसके अलावा अगर और कोई हम देखा जाए तरीका तो वो है दवाइयों के जरिए. तो जैसे प्रोफेसर साहब ने पहले बताया कि आजकल कई ऐसी दवाइयां आ गई हैं जिनसे वजन कम होता है. उसमें कई शुगर की दवाइयां हैं और कई मोटापे की वजूहात में भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो वजन बढ़ाती हैं, जिसमें गले के में गिलड़ के मसाइल हैं, उसमें भी वजन बढ़ जाता है. उसका इलाज किया जाए तो उससे भी वजन कम हो सकता है. तो कुछ हार्मोन्स हैं जिसके इम्बैलेंस गैर
वजन होने की वजह से वजन बढ़ जाता है, तो वो भी मेडिकली ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी वही बात आ जाती है कि आपको 8 से 10% जो है आपके बॉडी वेट जो है वजन वो आप कम कर सकते हैं। और यही कि आप जब दवाई छोड़ेंगे या आपकी जो बीमारी है वो दोबारा अगर उसी तरह बढ़ जाएगी तो आपका वजन बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब आखिरी जो हल है वो ये होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं और उनमें ये खुराक और ये दवाइयां काम नहीं कर सकती, उसमें फिर जो आखिरी हल जो है वो हमारे पास सर्जरी होती है। अब सर्जरी के बारे में कई मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं जिससे वजन कम किया जाता है, और इसके बारे में ये है कि हम 60 से 70% वजन भी कम कर सकते हैं। ये इतनी इफेक्टिव है क्योंकि जो मरीज इतने ज्यादा मोटे हैं, जिस तरह अगर 170-80 किलो का बंदा है तो उसको 8-10 किलो वजन कम करने से कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, तो उसको तो एक काफी ज्यादा अमाउंट जो है अपने वजन की वो कम करनी है। तो उन पेशेंट्स के लिए ये सर्जरी वाला जो तरीका है वो अपनाया जाता है। और उसके बाद फिर इसमें एक और फायदा ये है कि इसमें बाद में अगर मरीज एहतियात करे और अपनी ये जो आदतें हैं वो तब्दील कर लें तो वजन दोबारा बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि सर्जरी भी अगर आप करवा लें लेकिन आपको फिर भी एहतियात करनी है। बिल्कुल ऐसे बगैर ही है। एहतियात के आप फिर उसके बाद ये ना हो कि आप खाना शुरू कर दें, बिल्कुल, ये और तो पका के खाएं, तो फिर उसका मतलब वजन बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल, क्योंकि जब अपने ऑपरेशन कर दिया या आपने किसी भी तरीके से वजन कम किया लेकिन ये जो वजूहात थी वो दोबारा वहीं पे मौजूद हैं, तो जाहिर बात है वजन तो बढ़ेगा। जी, डॉक्टर सजील अहमद साहब जो हैं वो भी सर गंगाराम अस्पताल में इसी टीम का एक हिस्सा है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये सर गंगाराम अस्पताल की कौन सी वार्ड है जहां पर आप जो है वो सर्जरी के जरिए जो है वो मोटापा कम करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सजील है। एक्चुअली 2018 में प्रोफेसर खालिद जवेद खान साहब और यहाँ पे डॉक्टर अंजा थे, पहले रजिस्ट्रार थे, अब मैं रजिस्ट्रार हूँ। उनके साथ मिलके जब, जैसे कि डॉक्टर विशाल बता चुके हैं कि एक्चुअली हम पे बहुत बर्डन है ओबेसिटी का, ये मोटापे का, और ये मोटापा एक अब बीमारी डिक्लेयर कर दी गई है क्योंकि ये शुगर, ब्लड प्रेशर, जिस तरह सब ने बताया है कि ये बहुत ज़्यादा मसाइल काज करता है। तो जब हमने देखा कि हमारे यहाँ भी जो मरीज़ आ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक 40% अब मरीज मोटापे के साथ आ रहे थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी ये शुरू करें। सो फिर हमने डिसाइड किया कि ये तो जिस तरह आप सबको पता है कि एक महंगा ऑपरेशन है। बिल्कुल। तो फिर हमने सबसे बात की, प्रोफेसर साहब ने बात की एडमिनिस्ट्रेशन से, इसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारी बात मानी। तो हमने एक टीम बनाई, और क्योंकि ये एक बहुत कोई सिंपल ऑपरेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़े ऑपरेशंस हैं जो कैमरे की मदद से किए जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रोफेसर अवेलेबल हैं जो ये ऑपरेशन करने में माहिर हैं। तो हमने एक टीम बनाई, और इस टीम में सिर्फ सर्जन्स ही नहीं, इसमें और भी बहुत से लाइक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट, ये बेहोशी वाले डॉक्टर, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर जो हैं, इन सब के साथ हमने मिलके, और न्यूट्रिशनिस्ट रिक्वायर्ड थे, इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ रिक्वायर्ड था। ये सब हमने एक पूरी टीम बनाई, फिर हमने इसका आगाज किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई अबाउट 63 पेशेंट्स को ऑपरेट कर चुके हैं। कुछ पेशेंट्स जिस तरह आप मिल भी चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और सब हमारे साथ प्रॉपर फॉलोअप में हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में फॉलोअप का बहुत इशू है, लाइक मरीज वापस नहीं आते, तो हमें इनके साथ व्हाट्सएप पे या डिफरेंट तरीके से हमने इनके साथ एक अच्छा राब्ता रखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब वापस आते हैं, और हम इनके मंथली इनको बुला के इनके साथ प्रॉपर इनको नेक्स्ट, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर दाऊद ने बताया है कि अगर ये वापस अपनी उसी रूटीन पे चले जाएंगे तो वजन दोबारा बढ़ जाएगा, जिसका इतने बड़े महंगे ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं है। तो सब कुछ इनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है ताकि ये अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। इसमें मैं कुछ और भी आपको बता दूं कि इसमें जितने भी हमने ऑपरेशन किए हैं, इसमें काफी मरीजों को शुगर, ब्लड प्रेशर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको शुगर, ब्लड प्रेशर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन के बाद शुगर भी खत्म हो गई? यस, ये बताने का मकसद ये है कि पहले ये समझा जाता था शायद ये स्मार्ट होने के लिए ऑपरेशन है, अब इसको सर्जरी को भी मेटाबॉलिक सर्जरी का नाम दे दिया गया है। लाइक ये जिन मरीजों को मोटापे की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसले या इस तरह के जोड़ों के मसले हो रहे हैं, ये उनके इलाज के लिए सर्जरी है, बिल्कुल, सिर्फ स्मार्ट होने के लिए सर्जरी। तो डॉक्टर साहब क्या मैकेनिज्म क्या है जब कोई पेशेंट आता है, आप किस तरह का पेशेंट लेते हैं? उसमें बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें काफी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो लाइक उसकी ओबेसिटी क्या है, कितना, लाइक क्या वो पहले सारे तरीके अपना चुका है, और उसका वजन कितना है। ठीक है, लाइक इफ
अगर BMI, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने पहले BMI के बारे में बताया है, BMI हम एक टर्म यूज करते हैं, उसमें 35 फिगर है और उसके साथ उसको शुगर या ब्लड प्रेशर है उसको, या 40+ BMI है उसको, लाइक फिर कुछ भी चाहे नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी सर्जरी की जरूरत है। उसके बाद हम काफी फैक्टर्स नोट किए जाते हैं, लाइक उस ये नहीं है कि एक 80 इयर्स का है तो हम उसको भी ले लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें लाइक यंग पेशेंट्स जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है अभी, उनको लिया जाता है। तो डॉक्टर साहब अभी तक कोई तकरीबन सारे कामयाब ऑपरेशन हुए हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामयाब ऑपरेशन हैं, सब मरीजों के काफी हद तक वजन, कुछ अभी रिसेंटली जो किए हैं वो तो अभी पूरा वजन नहीं कम किया अभी उन्होंने, लेकिन जो हमने रिजल्ट अब 2 इयर्स, क्योंकि हमारे पास डाटा मौजूद है, हमने ये देखा है कि ये शुगर ब्लड प्रेशर भी खत्म हुए हैं मरीजों के, वजन भी वापस कम हो गए हैं और इसके अलावा वो एक हेल्दी लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर वसाल साहब से पूछना, डॉक्टर साहब बताइएगा कि एक सवाल आपसे है मेरा कि ये कितने लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जो मोटापे का शिकार है, उनको शुगर भी है? अच्छा, अगर आप देखें ना, जो लोग मोटे हैं जिनको मोटापे का शिकार है, उनमें से 30% लोगों को शुगर है। उसी तरफ ये देखें कितने लोग हैं जिनको शुगर है और वो मोटे हैं। 80% ऐसे लोग हैं जिनको शुगर है और वो मोटे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना वो मतलब इम्पैक्ट है मोटापे का शुगर पे होने का। 80% लोग जिनको शुगर है उनका वजन ज्यादा है। तो ये और सिर्फ ये नहीं, दिल कार्डियो रिस्क। तो इसकी वजह ये कहा जा सकता है कि मोटापे की वजह से शुगर होती है? बिल्कुल, मोटापे की वजह से शुगर पैदा होती है। जितने साल गुजरते हैं मोटापा उधर का उधर रहता है, उतना ज्यादा आपका सिर्फ शुगर होने का रिस्क नहीं, दिल के मसाइल होने का, ब्लड प्रेशर तेज होने का, आपके दिल अच्छा काम ना करने का भी बढ़ता है। जो हम BMI की बात कर रहे थे, अगर हमारा BMI मोटापे वाले उसमें हिस्से में आ जाए और 1 भी बढ़ता है, उसके बाद 5% रिस्क आपका दिल कम काम या बुरा काम करने का रिस्क बढ़ जाता है हर बंदे के लिए, चाहे उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट है वजन कम रखना। डॉक्टर साहब बताइएगा कि चूंकि ऑपरेशन आप जब करते हैं तो इन्फेक्शन जो है उसको बड़ा देखना होता है, इन्फेक्शन फ्री ऑपरेशन थिएटर होने चाहिए। बिल्कुल। वरना जो ये होता है कि आप ऑपरेशन करते वक्त कुछ और जो मरीज बेचारा जो है वो साथ मर्ज ले जाता है। तो आपका ऑपरेशन थिएटर कितना इन्फेक्शन फ्री है? इसमें इन्फेक्शन जो डिपेंड करता है ना ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस पे, वो होता है कि ऑपरेशन किस किस्म का है। अगर तो ऑपरेशन के दौरान आपने जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा खोला है जिसके अंदर जरासीम, क्योंकि आपको पता है कि हमारी आंत होती है और आंत के अंदर भी जरासीम होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं और वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर आंत का कोई हिस्सा खुला है तो उसमें जाहिर बात है कि उसके जरासीम बाहर आएंगे तो उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कोई सिंपल ऑपरेशन जिसमें आपने मतलब जैसे आप पित्ते का ऑपरेशन कह लें या ये जो हमारा ऑपरेशन है, इसके अंदर इन्फेक्शन का रेट उस सर्जरी से बदरजा कम है। तो हम कंपैरिजन इस चीज़ों पे नहीं कर सकते कि ये कौन से ऑपरेशन, हर ऑपरेशन का एक तरह का इन्फेक्शन रेट नहीं होता। और ये माइनर सर्जरी या मेजर है जो आप ये करते हैं? मेजर सर्जरी है और इसके अंदर बॉडी कैविटी एक्सपोज होती है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो आंत के खुलने के ऑपरेशन जो हैं उनके मुकाबले में कम है। और दूसरी बात, आपने हमारे थिएटर की बात की, तो जो हमारा क्वालिटी चेक है और इन्फेक्शंस कंट्रोल का हमारा एक स्पेशल मैकेनिज्म है। तो हमारे यहाँ पर हफ्तावार कल्चर्स होते हैं, हर चीज़ का चेक किया जाता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और दूसरी बात कि हमारे जो पेशेंट है, मेन चीज़ होती है आपका आउटकम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी ऑपरेशन है उनके अंदर इन्फेक्शन रेट बहुत कम है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ वो मरीज भी मौजूद होंगे जो जिन मरीजों की सर्जरी की गई, और साथ जो टीम है यहाँ पर उसके कुछ और डॉक्टर मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे और उन मरीजों से भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन मोटापे के ऊपर बात कर रहे हैं और खासतौर पर पूरे प्रोग्राम में मोटापे की वजूहात और मोटापा कैसे होता है, उसका इलाज क्या है। सर गंगाराम अस्पताल में सर्जरी के जरिए मोटापे को कम किया जाता है। बहुत सारे मरीजों का कामयाब ऑपरेशन किया गया। मेरे साथ 2 मरीज यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी सर्जरी की गई और सर्जरी के बाद उनका जो मोटापा कम हुआ, उनसे बात करते हैं कि अब वो कैसा फील करते हैं, उनका पहले वजन कितना था, अब वजन कितना है। तो यहाँ पर मेरे साथ 2 मरीज मौजूद हैं। सबसे पहले एक मरीजा मेरे साथ मौजूद है। मैडम आप बताइएगा कि
آپ کا सर्जरी से पहले आपका वजन कितना था? मेरा सर्जरी से पहले 125 किलो वजन था और अब मेरा हो गया 79 हो गया। ठीक है, और सर्जरी को टाइम कितना हुआ है अभी? 8 मंथ हो गया 8 महीनों में आपका वजन जो है वो कम हुआ है। जी। तो ये बताइएगा कि आपको इससे पहले क्या मसाइल थे और आप किस तरह फील कर रही हैं? देखिए, जो लाइफ है वो स्ट्रगल का नाम है और स्ट्रगल करने के लिए हमें फिट होना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे स्मार्ट होने के बाद पता चला। इससे पहले मेरी लाइफ बहुत मुश्किल थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी, ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी, काम नहीं होता था और जॉब्स नहीं मिलती थी और मेंटली तो अभी बंदा बहुत अपसेट रहता था। लेकिन ऑपरेट के बाद मुझे इतनी आसानी हुई है कि मैं हर फील्ड में हर जगह काम कर सकती हूँ और मैं बहुत एक्टिव हूँ, हर काम को कर सकती हूँ। अब सर्जरी के बाद तकरीबन काफी आपका वजन अगर बात करें तो तकरीबन 55 केजी हाँ, कम हुआ है। 55। तो उसके बाद आप फील कैसा करती हैं? मैं बहुत फिट फील करती हूँ, बहुत एक्टिव रहती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी जिंदगी में अपनी उम्र से 5-6 साल पीछे आ गई हूँ। ठीक है, तो ये बताइएगा कि क्योंकि मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 जो डॉक्टर हैं यहाँ पर जिन्होंने ऑपरेशन भी किया आपका और वो एक टीम है पूरी, उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं कि सर्जरी अगर आपने करवा ली तो उसके बाद ये नहीं हो सकता कि दोबारा वजन ना बढ़े। वजन बढ़ सकता है अगर आपने कंट्रोल ना किया खाने के ऊपर और बाकी सारी चीजों के ऊपर। तो अब आपके माइंड में क्या अल्लाह का शुक्र है कि हमारे डॉक्टर जो हमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी हम हर चीज उनके एडवाइस लेते हैं उनसे, तो जैसे बताते हैं हम वैसे ही करते हैं। जैसे जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, हम उनके मुताबिक ही डाइट को लेके चल रहे हैं। अभी अपनी तरीके से हम नहीं डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक डाइट है आपकी। और जहाँ पर विजिट होता रहता है बाद में जी। सर्जरी के बाद कितने विजिट हो चुके हैं आपके? मेरे तकरीबन हर मंथ में ही होता है। मंथ में एक चक्कर हम जरूर लगा के जाते हैं, अपनी मेडिसिन वगैरह सब कुछ डिस्कस करके जाते हैं डॉक्टर्स के साथ। जी बिल्कुल। तो मेरे साथ एक और यहाँ पर मरीज मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। चूंकि इनका जो वजन है 164 था, 164 केजी वजन था। अब माशाल्लाह इनका वजन जो है वो 74 किलो इनका वजन हो चुका है। तो ये भी काफी इन्होंने कम किया वजन, इनका तो तकरीबन 50 से भी ज्यादा कम हुआ है। तो आप पहले कैसा लगा, अब कैसा लगा आपको? पहले बहुत मुश्किलात थी, ब्लड प्रेशर का मरीज बन रहा था और चला फिरा नहीं जा रहा था, सांस बहुत ज़्यादा भारी हो जाती थी, बहुत मुश्किल था। और अब अल्लाह का शुक्र है। लोग वैसे आपको देखकर हैरान तो होते होंगे कि ये पहले कितना मोटा बंदा था और अब माशाल्लाह कितना जी स्मार्ट हो चुका है। जी बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं और मैंने अपने रेफरेंस से 1-2 मरीज भी भेजे हैं यहाँ पे, और भी भेजे हैं। तो आपका यहाँ पर सारा मुफ्त इलाज हुआ, मुफ्त सर्जरी हुई सारी? जी बिल्कुल मुफ्त हुई है। तो कैसे आपको पता लगा कि सर गंगाराम अस्पताल में ये सिलसिला शुरू है, क्योंकि ये तो बहुत महंगा इलाज है? जी, मेरी एक कजन ने यहाँ से ऑपरेट करवाया था तो उन्होंने मुझे बताया था, फिर मैं आया और डॉक्टर साहब से मिला, इन्होंने आगे प्रोफेसर साहब से मेरी बात की और फिर इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। तो अब जो है वो किसी किस्म का कोई आपको कोई जिस तरह कुछ सांस का मर्ज या आप वाक शॉक आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और डाइट का जो तमाम डॉक्टर साहिबान ने यही कहा है कि सर्जरी के बाद भी आपको कंट्रोल करना है खाने के ऊपर। जी बिल्कुल करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल फिट है। ठीक, मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले जो आपका वजन बढ़ा है जी वो किस वजह से बढ़ा था, आपको कोई आइडिया है उसका? जी बिल्कुल, मेरा बिजनेस है, मैं सिर्फ चेयर पे बैठा रहता था, कोई फिजिकल वर्क नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं था, और उसकी वजह से खाना बहुत ज्यादा और वर्क नहीं, वर्जिश नहीं है, वॉक नहीं है, जिसकी वजह से बढ़ा था। यहाँ पर मैडम से दोबारा बात करते हैं, इनको जरा माइक दीजिएगा। मैडम ये बताइए, चूंकि खवातीन बेचारी जो है वो हमेशा एक असासे कमतरीन का शिकार रहती है, जो कि वो मोटापा बिल्कुल जो मर्द लोग हैं चलो वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन खवातीन स्मार्ट होना चाहती हैं और उनका यही ख्वाहिश होती है कि वो स्मार्ट रहें। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगी? मैं तो उनके लिए यही मैसेज दूंगी कि इंसान को ना कि फेस टू फेस देखने के लिए भी स्मार्ट होना, फिट होना बहुत जरूरी है। कि लुक जो होती है ना इंसान की, वो पर्सनैलिटी जो निखारती है, स्मार्टनेस से ही जो है ना पर्सनैलिटी निखरती है। तो मुझे ये बताइए कि अब आप जो है वो किसी और को भी मैसेज देंगे कि इस वार्ड में यहाँ पे ट्रीटमेंट इस तरह का हो रहा है? जी, मैं अपनी काफी लोगों को कहती हूँ कि ये ट्रीटमेंट करवाएं और यहाँ इस हॉस्पिटल में जाएं। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सजील साहब जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप भी इस टीम का हिस्सा हैं, शायद आप रजिस्ट्रार हैं यहाँ पर? रजिस्ट्रार हैं। तो दोनों जो पेशेंट मेरे साथ मौजूद है, इस तरह के
मजमूई तौर पर कितने मरीज, इससे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कितने मरीज जो है वो इस वक्त सर्जरी हो चुकी है? जी 63 पेशेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जिनको हम ऑपरेट कर चुके हैं इन लास्ट 2.5 ईयर। 2018 में हमने आगाज किया था। 63 ठीक है, और वो माशाल्लाह सारे कामयाब हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अबाउट जिनके अभी रिसेंटली लास्ट 6 मंथ में हुआ है वो तो अभी उनके रिजल्ट बाद में आएंगे। ठीक है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे। अच्छा, कुछ ऐसा भी हुआ कि आपने सर्जरी कर दी और पेशेंट का वो वजन कम ना हुआ हो, ऐसा भी है? नहीं, जी ये 2 पेशेंट्स में हमें ऐसा हुआ है कि हमने ऑपरेशन किया, वजन कम हुआ, लेकिन वो उनके हमने मल्टीपल टाइम कांटेक्ट किया लेकिन वो नहीं हमारे साथ अच्छा फॉलोअप रख सके। लेकिन बाद में उनकी वही बैड हैबिट्स, दोबारा से उन्होंने खाना पीना शुरू किया और दोबारा वेट गेन हो गया। अब उनको हमने दोबारा बुला के उनको काउंसल किया है कि वो अपना हैबिट्स अच्छी करें, डाइट अच्छी करें, एक्सरसाइज करें ताकि उनका वजन कंट्रोल हो सके। डॉक्टर साहब, ये बड़ा चूंकि प्राइवेट तौर पर लाखों रुपए लिए जाते हैं इसके, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा, जो डॉक्टर साहबान कर रहे हैं प्राइवेट तौर पे, तो आपका बजट का सिलसिला सारा किस तरह मैनेज होता है? जी ये जिस तरह के प्रोफेसर साहब पहले भी बता चुके हैं कि एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमारी काफ़ी हेल्प कर रही है। वीसी साहब हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट पंजाब है। इसमें बेसिकली एक डिवाइसेस जिन्हें स्टेपलर्स कहते हैं वो यूज़ होते हैं, वो बहुत महंगे हैं, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम करते हैं। बाकी सर्जरी यहाँ पे प्रोफेसर अवेलेबल हैं जो कि सर्जरी करते हैं और हमारी टीम अवेलेबल है। सर्जरी फ्री हो जाती है और वो स्टेपलर्स हमें जो बेसिकली जो कॉस्ट ज़्यादा करते हैं वो भी मिल जाते हैं। और बाकी क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप है तो बाकी जो टीम इसके लिए रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो इसका जो आपका सर्जरी डे है वो किस तरह आप मैनेज करते हैं? कितने दिनों बाद ये आपका स्पेशल, क्योंकि बाकी सर्जरी भी साथ चल रही है? जी बाकी भी सर्जरी चल रही होती हैं, तो इनको हमने अबाउट 2 वीकली या वीकली पहले पूरा एग्जामिनेशन होता है पेशेंट जी, का? जी ये नहीं है कि आते साथ ऑपरेट हो जाएगा, इनके लिए भी बहुत प्रॉपर वर्कअप चाहिए सारे होता है। टेस्ट? यस, इनके लिए बहुत से टेस्ट, इवन दिल का और चेस्ट का इवैल्यूएशन, सारी पूरी इवैल्यूएशन होती है। और इसके अलावा इनको 2 वीक बिफोर सर्जरी एक स्पेशल डाइट पे डाला जाता है ताकि, और इसके अलावा इनको कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं ताकि ऑपरेशन के, क्योंकि हमने ऑपरेशन करने के सेम डे शाम को पेशेंट को चलाना फिराना होता है। ये नहीं है कि 2 दिन पेशेंट बेड पे लेटा रहेगा, और इवन दूसरे दिन मॉर्निंग में हमें उससे लिक्विड्स अलाउ करके डिस्चार्ज भी करना है। हमारा पेशेंट लाइक शाम 2 बजे अगर ऑपरेशन खत्म हुआ है तो 4 घंटे बाद उसे चलाएं फिराएंगे और दूसरे दिन मॉर्निंग में उससे ओरल फ्री करके लिक्विड्स के लिए फिर उसे पूरा प्लान समझा के उसे डिस्चार्ज करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आलमी दिन है मोटापे का और आप हम सारा इसकी अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी यही मैसेज है कि क्योंकि पहले तो सबसे पहले अहम बात यह है कि हमारा जो कल्चर है इसमें, जिस तरह मैं इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस तरह मैं भी जब घर जाता हूं, मैं गांव से तलक है, तो वो मुझे हमेशा मेरे घर वाले यही कहते हैं तुम बहुत वीक हो, जबकि मेरा आइडियल यानी कि जो बॉडी वेट है ये कंट्रोल BMI भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा भी इसे बढ़ाऊंगा तो ये मैं ओबेसिटी की तरफ जाऊंगा। इसी तरह हमारा कल्चर है कि वो स्मार्टनेस को समझते हैं, जिस तरह ये कमजोर हैं और जिस तरह वेट गेन करेंगे वो कहेंगे ज्यादा हेल्दी है। इस कंसेप्ट को खत्म करें ये। और दूसरी बात कि WHO ने अब मोटापे को एक बीमारी कह दिया है। जिस तरह अगर किसी को कोई बीमारी होती है और वो इलाज के लिए अस्पताल आता है, तो जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो अस्पताल आएं और डॉक्टरों से मिलें और इसका बाकायदा इलाज करवाएं, क्योंकि अदरवाइज उनको 50 स्पेशली 50+ एज के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक है, किसी को फारज हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को शुगर की वजह से बहुत ज्यादा गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी अहम बात कि इसका फायदा मेरा ख्याल है कि एज आ नेशनल इशू भी है ये हमारा, क्योंकि हमारे जितने भी ये वार्ड जो भरे हुए हैं ये इन्हीं बीमारियों से भरे हुए हैं, तो हम इनडायरेक्टली मोटापे को कंट्रोल करके इन सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और इस तरह जितनी हम इन बीमारियों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे अस्पतालों पे, तो ये सारा हमारा बजट बच सकता है, जिसको हम फिर कोई अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया यहाँ पर जो मरीज बैठे हैं। तो इस पूरे मामले पर नाज़रीन हमने जो आज बात की मोटापा तमाम अमराज की, यहाँ पर ये बल्कि कहा गया डॉक्टर्स की जानब से कि आलमी इदारा सेहत ने भी मोटापे को एक मर्ज करार दे दिया है। और तकरीबन जितनी भी गुफ्तगू हुई इसमें डिस्कशन में यही लगा कि मोटापा ही जो है वो मेन एक वजह है तमाम अमराज की। तो सर गंगाराम अस्पताल में अच्छा एक पॉजिटिव मैं समझूंगा कि एक यहाँ पर स्टेप लिया गया है उन मरीजों के लिए जो इंतहाई महंगा इलाज है, खासतौर पर अगर आप प्राइवेट करवाते हैं तो लाखों डिमांड किया
کیا جاتا ہے آپ سے اور یہاں پر جو سرجری کی جاتی ہے، اور یہ بھی یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ فیشن نہیں ہے کہ آپ فیشن کے طور پر یہاں پر آ جائیں اور اپنی سرجری کروا لیں. یہاں پر ایک پورا میکینزم ہے اور جس مریض کو ضرورت ہوتی ہے سرجری کی اور اس کی سرجری کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ بھی ہر کوئی مریض یہاں پر آ گیا اور اس کی سرجری کر دی گئی. تو اوورآل یہاں پر جو جتنے بھی مریض ہیں ان کا موٹاپے کے شکار جو لوگ آئے ہیں کامیاب سرجری کی گئی ہے اور ایک سرکاری سطح پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سٹیپ ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں. موٹاپے کے اوپر تفصیلی گفتگو کی نئے موضوع میں نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.